So good morning students, we will be continuing with our next lecture of vectors. Okay, so if we say the vectors concept, today we will discuss first concept of position vector and displacement vector. This is our first concept, position vector and displacement vector. And displacement vector. This is our first concept today. Okay. What is this position vector? Suppose this is an xy plane, you know. This is x plane, this is x axis, this is y axis. And this is xy plane. This plane is known as xy plane. Okay. Suppose body is at a point in the xy plane. What is meant by this A? Means it is at this distance from y axis and it is this distance from x axis. Okay, the meaning of this is like this, na? So the vector starting from the origin and ending at the location of object, that is position vector. That is a position vector. It's a vector starting from origin So position vector is this vector starting from this is origin and ending at the position of body. So where it is ending at the position of body. The position of body is at this point. So ending at the position of body at any time t. Because at any time t it will be either at this location or either this location or this location. It doesn't matter. So this is r. So r is the position vector of A. Okay. So r is position vector of this A object. Okay, like this. So this is the concept of starting from the origin to the position of object at any time t. कहाँ से start हो रहा है? From origin and ending at कहाँ तक? To the position of object तक है at any time t है. तो displacement vector क्या है? Suppose same, this is xy x axis, this is y axis, and this is xy plane. Plane is two dimension. This is xy plane. Suppose the position of body at time t1. Suppose at time t1, its position vector is r1, and at time t2 body has moved to a b location and its position vector is r2. Okay, at time t1 the body is at a and its position vector is r1, and at body t2 body has moved to a new location at time t2 b and its position vector is r2. So the vector starting from the initial position of the object and ending at the final position of object, that vector is known as displacement vector. So this vector is known as displacement vector. So this vector, okay, so you can say that it is a displacement vector. We have to mention some. Suppose object has moved from A to B in time
T1 to T2. Okay, so what is displacement vector? Vector starting from the initial position of the body and ending at the final position of body, that is known as displacement vector. So vector starting from the initial position of body and ending at the final position of body. That is displacement vector, dv, displacement vector. Okay, so this is displacement vector. So this is our first concept today. What is position vector? What is displacement vector? Okay, it's a vector starting from the initial position of the body to the final position of body. So this is a concept. So we are moving on to our second concept today. Second concept is what are equal vectors? Two vectors. Suppose there are two vectors. One, this is A vector, this is B vector. Suppose this is A vector, this is B vector, which are having the same magnitude and they are acting in the same direction. They are known as equal vectors. Same magnitude. Two vectors which are having the same magnitude and acting in same direction. Are known as equal vectors. So this is a concept. Okay. Fourth point is, so this is our second concept today, and third concept is collinear vectors. If two vectors, suppose A vector is there and B vector is there, if they are acting in same direction, then also they are collinear. If they are acting in opposite direction, okay, then also they are collinear. Vectors acting in the same direction or in opposite direction, they are said to be collinear vectors. Vectors acting in same direction or opposite direction are collinear vectors. Okay, they are known as collinear vectors. What we are saying, 3 points in a mathematics, if they are lying in the same line, they are collinear vectors. Okay, एक लाइन में है तो collinear है, वही बात है. अगर एक डायरेक्शन में है तो collinear है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब भी collinear है. So there is no worry about that. And next concept today is negative vector. This is very much clear to you. Suppose A is a vector acting in this direction. What is the negative of A? It will be acting in opposite direction with the same magnitude. This will be negative of A. Vector having same magnitude but acting in opposite direction is known as negative vector of the original vector. So this is the concept of negative vector.
So negative vector is done. So next concept is resolution of a vector into rectangular components. Resolution of a vector into rectangular components. मतलब we will break the vector in 3 dimensions. So earlier what we have done, suppose this is x-axis and this is y-axis. Okay, suppose a vector is there. This is the position vector. Okay, what we are saying, suppose it's a resultant vector. Okay, suppose what we are saying, some component of R will be here and some component of R will be here, like this. So what this component is called, this is Rx component and this is Ry component. So resultant vector R is equals to Rx plus Ry, or we can say that Rx, what is this Rx, towards which direction? So Rx towards x-axis I cap, मतलब unit vector, this is magnitude, this is direction. So this is also a vector Ry towards this direction. So this is R. So we have resolved this vector into its 2 components. Now we will resolve the component into 3 components, x-axis, y-axis and z-axis. हमने इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया है. एक वेक्टर का कुछ हिस्सा x-axis की तरफ है, कुछ हिस्सा y-axis की तरफ है, क्योंकि if this is ry, this is also ry. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ये और ये दोनों का मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, आर ही आएगा. 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, आर एक्स और आर वाई सेम ऑर्डर में और आर ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई. सो आर एक्स इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज आई कैप एंड आर वाई इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज जे कैप. सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर. दिस वेक्टर इज हैविंग सम वेक्टर कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड सम वेक्टर कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सेस. तो अब हम 3 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे. If we want to resolve a vector into both the 3 axes, we will say it rectangular components. तो हम उसको rectangular components कहते हैं. So learn the way how we are breaking a vector. Suppose y-axis and this is z-axis. Okay, suppose a vector is lying in space. This is a vector, suppose. Okay, this is a vector and its position is this, suppose. Okay, its position is this. Suppose it's a vector. Okay, this will have some means points now on x-axis and y-axis like this. If it's lying here, if a vector, we will say 2 3 means 2 I cap, 3 j cap. Here it is 2 I cap, here it is 3 j cap, like this. It will have the components, so it will have the values along x-axis also, means it will have some magnitude along x-axis also, magnitude along y-axis also, magnitude along z-axis also. How you can find by what is the component along x axis, what is the component, इसका तो बहुत आसान है component ढूंढना भी, x axis की तरफ कितना है और y axis की तरफ कितना है. अगर हमें वेक्टर ऐसे प्लेन में दिया, ये तो प्लेन में दिया हुआ है, अगर इसका component x axis पे ढूंढना तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दो x axis पे, तो वो क्या आ जाएगा ax. अगर इसका component y axis पे ढूंढना है तो y axis पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा ay. बट हेयर यहाँ पे तीनों एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस. हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकते. इसमें बहुत आसान है इसके कंपोनेंट्स ढूंढना. एक हिस्सा इसका ये आ गया, एक हिस्सा इसका ये आ गया, तो हम इसको लिख देंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई. और लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, ए एक्स आई कैप है और ए वाई जे कैप है. तो लाइक दिस सेम वे. तो अब हमें ये 3 एक्सेस वाला करना है, इसको रिजॉल्व करना है.
तो इसका वे थोड़ा सा इससे अलग है। करना तो वैसे ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर ही ड्रा करना पड़ेगा एक्स एक्सेस के। तब हम किसके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक्स एक्सेस के भी और वाई एक्सेस के भी। अगर कोई वेक्टर हो तो उसका एक्स एक्सेस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और वाई एक्सेस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो उसमें वाई एक्सेस का कंपोनेंट आ जाता है, उसमें एक्स एक्सेस का। तो ऐसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जेड एक्सेस पे। उसके लिए हमें इसकी शेडो बनानी पड़ेगी नीचे, यहाँ पे आ जाओ। ये मान लो इसकी शेडो है, ये इस पॉइंट पे। सबसे पहले वी विल ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दी जेड एक्सेस। सो परपेंडिकुलर कैसे ड्रा कर सकते हैं जेड एक्सेस पे, तीनों एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। जो एक्स एक्सेस है जेड एक्सेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर हम ऐसे कोई लाइन ड्रा कर देंगे सीधी एक्स एक्सेस के, जैसे एक्स एक्सेस जा रही है, तो वो जेड एक्सेस पे कैसे फॉल होगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, क्योंकि एक्स एक्सेस भी जेड एक्सेस पे कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है। तो हमने इस पॉइंट को ले लिया भी, ये ए पॉइंट यहाँ है मान लो प्लेन में, ये यहाँ नहीं है, यहाँ है, क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यहाँ से मैं जेड एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि जेड एक्सेस यहाँ पे है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है मान लो, यही ये पॉइंट। तो परपेंडिकुलर ड्रा करो सबसे पहले जेड एक्सेस पे। जो परपेंडिकुलर आ गया जेड एक्सेस पे, वो जेड एक्सेस वाला कॉम्पोनेंट बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ए जेड। तो जेड वाला हमें पता लग गया भी, जेड वाला ये है, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर ड्रा करना हमें इस पॉइंट का एक्स एक्सेस पे, इस पॉइंट से कैसे कर सकते हैं, तो जेड एक्सेस एक्स एक्सेस पे कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे गिरूंगा इसको, तो ये क्या गिरी, परपेंडिकुलर। जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरी है तो वो क्या आ गया है, ए एक्स। समझ आई। अगर हमारे पास किसी भी, मान लो ये प्लेन है, कोई भी प्लेन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स वाई में कोई प्लेन है, हमारे पास कोई पॉइंट आ गया, सपोज जैसे हमारे पास ये पॉइंट आया था, बी पॉइंट आया था मान लो, ठीक है, दिस इज़ बी पॉइंट। अगर हम एक एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है उस वेक्टर का। जैसे ये वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट मिल जाता है जिस पे गिरती है एक्स। तो ये परपेंडिकुलर गिरा तो कौन सा कंपोनेंट मिल गया, ए जेड। अगर दूसरी एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करता है तो हमें दूसरा कंपोनेंट मिल जाता है, जैसे ए वाई मिल गया। तो हमने दूसरी पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उस पर हमें कौन सा मिल गया, ए एक्स मिल गया। हमारे दो कंपोनेंट मिल चुके हैं, ए एक्स मिल चुका है, ए जेड मिल चुका है। पर हमारा टारगेट क्या है, एक्स एक्सेस पे भी कंपोनेंट ढूंढना है, वो हमने ढूंढ लिया है। वाई एक्सेस पे भी कंपोनेंट ढूंढना है, वो भी बाकी है। जेड एक्सेस पे भी कंपोनेंट ढूंढना है, तो वो हमने ढूंढ लिया है। समझ आ रही है। जब हमें मान लो दो दो एक्सेस में कोई पॉइंट मिलता है तो हम दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। जैसे ये पॉइंट है, दो एक्सेस में है ना, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। अगर हमें इस पेस का कंपोनेंट ढूंढना है तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस पेस का मतलब कंपोनेंट ढूंढना है तो इसको इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो हमने इस पॉइंट का मान लिया भाई, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, सेम ही चीज़ है। ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसका सेम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जैसे हम ये करते होते थे टू डायमेंशनल में, जैसे कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, ठीक है, तो उसकी शैडो कहाँ होगी, उसकी शैडो यहाँ होती है। सेम वैसा ही किया है। तो उसी पॉइंट की हमने क्या ड्रा की है, शैडो ड्रा की है। अभी काम ओवर नहीं हुआ है, सो वी हैव टू मूव ऑन। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंसेप्ट। तो हम वी आर मूव्ड ऑन टू दिस कंसेप्ट। सो वी विल कॉल दिस एज अ सी पॉइंट। सो बी सी के लाइन क्या बनाओ, कि बी सी एक लाइन है, इसके क्या बनाओ, हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल 3 डायमेंशन में जाना है, तो बी सी की एक लाइन पैरेलल बनाओ यहाँ से, जो कि इतनी लेंथ की होगी यहाँ पे। इसको ई मेंशन कर दो और इसको एफ मेंशन कर दो। जितनी बी सी है, मान लो 5 है तो यहाँ से 5 ऊपर उठा दो। और इन दोनों को, जैसे बी ई है, बी ई का पैरेलल क्या हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है। ऐसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, फिर चली गई है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या है, ई एफ, ये जी है, मान लो बी जी के, बी जी का मतलब ऊपर पैरेलल बनाओ, इतना बने। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनाओ, बन गया ना 5 सेंटीमीटर। इसको एच ले लो,
अब ये क्या है BC, अब ये भी कितना बन जाएगा BC जितना, लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है OE, OE का बनाओ, कहाँ बनेगा, कितना आएगा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बना, पूरा रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सा कंपोनेंट है AX, ये कौन सा कंपोनेंट आया AZ, ये AX है, तो ये कौन सा है जो Y पे गिर रहा है, जहाँ पे Y पे परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, बिल्कुल Y पे परपेंडिकुलर ड्रा किया इसका, तो वो कौन सा निकल के आया AY। तो A एक्सेस की तरफ हम इतना गए हैं, AY की तरफ इतना गए हैं, और फिर ऊपर कितना आ गए हैं AZ इतना। मान लो ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इतना 2 सेंटीमीटर है, तो इतना भी क्या होने वाला है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम मान लो 5 सेंटीमीटर इधर गए हैं, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गए हैं, 5 इधर गए, 10 ऊपर गए, और 2 बाहर आ गए, तो ये यहीं पे पहुंचेंगे हम। तो ये हमारा वो कंसेप्ट है। सो हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना होता है एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो तब हमें पता लगता है आके भाई उसका इस पे कंपोनेंट कितना गिर रहा है। एक्चुअल में पॉइंट यही है, ठीक है, कि बना कैसे है, पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ गए होंगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ गए होंगे, और फिर हम आगे की तरफ आ गए होंगे जेड एक्सिस में, क्योंकि जेड एक्सिस इधर होती है। तो वो इधर आने का हमने सिंबल ये ड्रा किया हुआ है, तो इधर आ गए हैं, बाहर स्पेस में आ गए हैं, ठीक है। सो मैं इसको दोबारा फिर करके दिखाता हूँ। तो एक बार फिर से करते हैं इसको, तो आपको और क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा, यू विल गेट द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। First of all, you have to draw this x-axis, this y-axis, and this z-axis. Okay, कहीं भी पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ ले लो, ये पॉइंट क्या है, ये वेक्टर है ए वेक्टर। अब हमें नहीं पता इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कहाँ है, वाई एक्सिस पे कहाँ है, जेड है, पर तीनों में है तभी आता है ये। जैसे इसका कंपोनेंट 2 में है, ये एक्स एक्सिस में भी कुछ हिस्सा है, पर यहाँ ये तीनों डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में इसका कुछ कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में भी इसका कुछ कंपोनेंट है, जेड एक्सिस में भी कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट। एक्स एक्सिस हमें नहीं पता कितना है, सबसे पहले इसकी शेडो ड्रा कर लो, मैंने कहा था आपको, सपोज यहाँ पे आ गई। सबसे पहले जिस एक्सिस पे कंपोनेंट ढूंढना है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, एक्स एक्सिस पे ढूंढना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, वाई एक्सिस पे ढूंढना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा। सपोज हमें जेड एक्सिस पे कंपोनेंट ढूंढना है, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो परपेंडिकुलर किधर को जाएगा, ऊपर को, इधर को, इधर को। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे कैसे गिर रही है परपेंडिकुलर, तो हम एक्स एक्सिस की तरह ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हो गया बस वो कंपोनेंट मिल गया हमें AZ, और यही इस पॉइंट से हमको मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जहाँ पे ये आया वो कौन सा कंपोनेंट मिल गया, एक्स एक्सिस वाला। भी 2 कंपोनेंट तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। अब हमें तीसरे कंपोनेंट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये रेक्टेंगल बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज ये रेक्टेंगल की साइड है B और C, सपोज अब ये क्या बन गई है D, ठीक है। अब D से क्या बनाओ, BC के पैरेलल बनाओ। अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो D से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा दो, जो कि बन जाएगी E, बन गई। अब CD अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसको जोड़ दो, तो ये भी क्या बन गई 5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का एक हिस्सा बन रहा है, डब्बे का एक हिस्सा बन रहा है। ओके, जेड एक्स वाई एक्सेस को थोड़ा सा लंबा कर दो, ओके, लाइक दिस। अब दिस E, इसको F ले लो। अगर CF 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा 10 और 10, इन दोनों को क्या कर दो जॉइन। ये फ्रंट बन गया बॉक्स का फ्रंट, ठीक है। अब ये क्या OD अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी कितना बनेगा, यहाँ से भी कितना बनेगा 10 बनेगा, क्योंकि ये और ये सेम है।
अब यहाँ से किसको मिला दो, इसको, और ये क्या होगी, सेम लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। जो तो एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है वो ए एक्स का है, जो वाई एक्सिस पे फॉल हो रहा है इस डब्बे का कंपोनेंट वो है, जो जेड एक्सिस पे फॉल हो रहा है वो क्या बन गया, ए वाई कंपोनेंट। समझ आई ऐसे। तो ये दिख भी रहा है भी ए एक्स हम इधर गए हैं, एक्स एक्सिस मान लो 5 सेंटीमीटर इधर गए, फिर 10 ऊपर गए, फिर 4 सामने आ गए ऐसे। मैंने आपको कहा था अगर हम एक्स एक्सिस में ऐसे ट्रैवल करेंगे, वाई एक्सिस में ऐसे ट्रैवल करेंगे, जेड में ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो ये पॉइंट स्पेस में तभी आएगा। यहाँ पे कैसे आया, एक्स एक्सिस में इधर गए, वाई एक्सिस में इधर गए, जेड एक्सिस में इधर आ गए, तो ऐसे पॉइंट बन गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्योंकि जेड हम ऐसे ही ड्रा करते हैं बोर्ड पे, वैसे तो जेड ऐसे होती है, बाहर को आती है, तो बाहर को आना हम ऐसे शो करते होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट ढूंढने के लिए हमें इसमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना पड़ेगा। सो ए के फिर 3 कंपोनेंट बन जाएंगे, कौन कौन से, कुछ हिस्सा एक्स की तरफ है, कुछ हिस्सा वाई की तरफ है, और कुछ हिस्सा जेड की तरफ है। जहाँ उसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसका ये उसका क्या है, डायरेक्शन। जो वाई एक्सिस की तरफ है वो कौन सा यूनिट वेक्टर बताता है, जे वेक्टर, और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा वेक्टर बताता है, के एक्सिस। सो दिस इज ए वेक्टर। ओके। और अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड ढूंढना है, वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट्स वेरी सिंपल, अंडर रूट square of first component, square of second component, square of third component. What is first component, ax, what is first component, second component, ay, what is third component, az. So this is the magnitude. Okay, सपोज ये जो मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, ये अल्फा एंगल बना रहा है पहले कंपोनेंट के साथ, ए एक्स के साथ, और ये वेक्टर हमारा दूसरे कंपोनेंट के साथ मान लो बीटा एंगल बना रहा है वाई के साथ, और z के साथ सपोज मान लो कितना बना रहा है, गामा एंगल। ठीक है, जो हमारा ये वेक्टर है ये वाला x के साथ कितना बना रहा है, अल्फा, ए वेक्टर। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, अगर हमारा ये r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर थीटा एंगल बनाता था, तो ये वेक्टर कितना आता था, r cos थीटा, यही आता था। तो ये कितना आएगा, a cos अल्फा। सो हमारा जो a निकल के आएगा, ए एक्स निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, a cos अल्फा। ऐसे ही हमारा ये वेक्टर जो है, ये वाला जो हमारा 3 डिमेंशन वाला वेक्टर है, ठीक है, हमारे y वाले के साथ जो हमारा y वाला कंपोनेंट है ए वाई, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट ये थीटा एंगल इधर बनाता तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता, r cos थीटा। तो अगर ये बीटा इधर बना रहा है तो ये कितना बन जाएगा, अगर ये वाला, तो ये बन जाएगा a cos बीटा। तो ए वाई कितना बनेगा, a cos बीटा। ओके, ऐसे ही ए जेड बन जाएगा, ए जेड कितना बन जाएगा, a, क्योंकि उसके साथ गामा एंगल बन रहा है, cos गामा, like this. So we have to draw a rectangle in order to find the component along x-axis, y-axis और z-axis. हमें रेक्टेंगल ड्रा करना ही पड़ेगा। 2 तो हमें सीधी मिल जाएंगे, तीसरे के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हर ट्राइंगल की साइड का पैरेलल ड्रा करना पड़ेगा, और जो जहाँ पे वो y पे गिर गया, जहाँ पे वो y पे गिर गया, क्योंकि ये y पे क्या है, परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, जब परपेंडिकुलर जहाँ पे फॉल करेगा वो y का कंपोनेंट बन जाएगा, ए वाई। तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो इसको अगर हम अपने एक विजुअलाइजेशन करें, एक माइंड में सुपोजिशन करें भी x की तरफ इतना जाता है, y की तरफ इतना जाता है, और z की तरफ इधर आ जाता है, तो ये स्पेस में बन जाएगा। कैसे होगा, x एक्सेस बोर्ड में गया, ये भी y भी बोर्ड में जाएगा, पर z के लिए बाहर आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। अब ओरिजिन को, रस्ते को इधर जोड़ दो, तो ये पॉइंट है x एक्सेस में, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हमें सुपोजिशंस अपने माइंड से करनी होगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस कंसेप्ट, यू कैन कॉल मी, I can explain you, because this is a difficult concept to explain this thing on a board. If we are side to side, we can make this concept very easy. So this is done. This is our this is new concept, resolution of a vector into its rectangular components. अगर हम एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट, मतलब उसके कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। मगर अगर हमारे पास ये वेक्टर है, तो
and it's having rectangular components ax, I axis and ay इसकी डायरेक्शन z के अकॉर्डिंग है और ये z कॉम्पोनेंट है उसकी डायरेक्शन k के अकॉर्डिंग। सिमिलरली वही हैविंग अब एक b वेक्टर है हमारे पास, उसकी कंपोनेंट उसका bx है आई एक्सेस के लॉन्ग i के लॉन्ग, by है j कैप के लॉन्ग और bz है k कैप के लॉन्ग। सो एक क्वेश्चन आता है रिजल्टेंट ढूंढो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सो वी हैव टू a प्लस बी। सो आई कैप वाले इकट्ठे ऐड कर दो, जे कैप वाले इकट्ठे ऐड कर दो, जेड के कैप वाले इकट्ठे ऐड कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों ऐड कर दो बिकॉज ये आई कैप में है। फिर ऐड कर दो जे कैप वाले ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस फिर के कैप वाले ऐड कर दो ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये क्या बन गया, दिस इज आर एक्स। इफ दिस इज आर वेक्टर ना, तो व्हाट इज दिस आर एक्स आई कैप, व्हाट इज दिस आर वाई जे कैप, व्हाट इज दिस आर जेड के कैप। सो यू कैन ऐड हाउ इट इज लाइक दिस। सपोज एग्जांपल ले लो 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये वेक्टर है और इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, करके देख लेना। 3 आई कैप minus 4 j cap plus 5 k cap. So add that. So this is a vector that is resolved into its rectangular components. 3 components में आएगा। अभी हमने 2 तक किया था, ये 3 कैसा हो जाए। So this is a question you have to do. So next concept is projectile motion. Projectile. So what is this projectile? Or motion in 2 dimensions. It's a very important concept. Suppose this is ground. This is known as horizon, and you have thrown a ball. It will move like this and it will fall. Finally it will fall. Okay, so what is the velocity here? In which direction the velocity is acting? In this direction. Suppose initial velocity is, you have thrown it with u and velocity component is making angle theta with the horizon. So you have thrown in this way, suppose this way. Okay, you have thrown it with u, initial velocity. So this velocity, it will have 2 components, one along the horizontal and one along the y-axis. How it is having 2 components? Because ball ऊपर की तरफ भी मूव कर रही है, so एक component इसका velocity का यहाँ भी एक्ट कर रहा है, इसलिए तो ऊपर जा रही है। इधर की तरफ भी बॉल जा रही है, सो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर भी एक्ट कर रहा है। सो ये यू एक्स है और ये यू वाई है। सो इधर को जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है दैट इज यू एक्स एंड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा ना, और जो इधर को कंपोनेंट एक्ट कर रहा है यू वाई। भी कहीं भी बॉल है, चाहे बॉल यहाँ पे है तो यहाँ पे इस पे टेंजेंट ड्रा कर लो, वेलोसिटी ऐसे है ना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, चाहे यहाँ ड्रा कर लो। ओके, रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसे जा रही है ना वेलोसिटी, एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, चाहे यहाँ ड्रा कर लो, ऐसे जा रही है ना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, कहीं भी ड्रा कर लो, तो ऐसा ही होने वाला। ओके, सो आई एम मेकिंग ए क्लियर पिक्चर अगेन। So this is a horizon and you have thrown a ball like this. Okay, and it's having a velocity direction in this direction.
one component is in this direction and one component is in this direction. So if it is u, it is having ux theta, making angle theta with the horizon, and it is having uy. Ball is thrown with angle theta. Okay, so with initial velocity u, with angle theta with horizon. Okay, with initial velocity u. So at any time ball will have two components of velocity. One component is acting along horizontal direction and one component is acting along vertical direction. One is horizontal component of velocity, सपोज करना है आपको, है इसलिए तो उधर की तरफ जा रही है बॉल, उधर को अगर कोई वेलोसिटी खींच रही है उसको, ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ ही कोई कंपोनेंट है क्योंकि ऊपर भी जा रही है कुछ ना कुछ. एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज ux एंड वन इज vertical component of velocity. uy. So what is the value of this ux? अगर u ये है, if it is making angle theta, so what is the value of this ux? ux क्या हो जाएगी? u cos theta. इसके अलावा अगर r है तो ये क्या होता है? r sin cos theta. तो एक कंपोनेंट इसका इधर है यहाँ, तो uy क्या बन जाएगा? u sin theta. So vertical component ux is equals to u cos theta, and what is this uy? U sin theta. Okay, so this is the basics. U cos theta is acting along, this is the horizontal component of velocity acting along horizontal, and u sin theta is the vertical component of velocity acting along vertical. Okay, so this is here. उसके बाद so next concept ये आता है, so you have to remember some terms now. So this ball is known as the projectile. This object which is thrown in this way, ball is known as projectile. Okay, so this ball is making, when you are throwing the ball, it is making angle theta with the horizon. So we are throwing a projectile with some angle, this is an angle, this angle is known as angle of projection, So we are throwing the projectile with some angle with the horizon. This angle is known as angle of projection. Object is thrown, or object you can say projectile also. Projectile is thrown with some angle theta with horizon, and theta is known as angle of projection, which is known as, so first term आ रही है angle of projection क्या होता है? So this is first term. This is very important. So ball is known as projectile. जो ऐसा मोशन कोई भी चीज़ करती है, हम फेंकते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल होता है.
ठीक है, लाइक दिस। सो हमने ये u क्या है, इट्स अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हमने बॉडी को जिस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u इज नोन एज इनिशियल, इट्स अ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। आगे जाके तो वो चेंज होगी, यहाँ आके कहीं ना कहीं v हो जाएगी, पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, प्रोजेक्शन। सो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। So first term is angle of projection, second term is initial velocity of projection. So remember these two terms. Okay. I will rough some things later on. We will have to discuss here. This is second term. Angle of projection is first and initial velocity of projection is second. Okay. Like this. So this velocity is moving like this now. So here gravity will pull the body downward, but body wants to move upward. So अगर ये ग्रेविटी ना होती तो बॉडी ने ऐसे ही चले जाना था ऊपर, पर ये इसको पुल कर रही है, दैट्स वाई ये पुल होगी ना ग्रेविटी की तरह, ये पुल कर ली, तो दैट्स वाई इट इज़ फॉलिंग लाइक दिस। सो ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करना चाह रही है, तो अगर ग्रेविटी ना हो फिर तो वो अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ को ही क्रॉस कर जाए एटमॉस्फेयर, पर ग्रेविटी उसको पुल कर रही, नहीं तो उसका मोशन मतलब ऐसा ही जाना था, ऐसा। पर ग्रेविटी की वजह से ही ग्रेविटी यहाँ भी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी यहाँ भी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी। ओके, सो ये बेंड हो जाएगी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल से। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये बेंड हो रही है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो, gravity is pulling the projectile in downward direction. So you have to make notes along with me. You can make pause somewhere in the video, but ऐसा नहीं है, you will first have to listen, then you have to make notes along with the video. You have to make, because we are moving very slowly, very slowly. Gravity is pulling the projectile in downward direction, so it will bend from its original direction of travel. So it will bend from its original direction of travel. So why projectile is bending? Because force of gravity is acting on the projectile. That's why the projectile is bending from its original direction of travel. So this is a concept, only a concept. Angle of projection is aware, initial velocity of projection is aware. So this projectile will means travel to a maximum height. Now this is the maximum height. So this is maximum height of the projectile. So maximum height traveled by the projectile is known as maximum height. Okay. And the distance covered by this projectile from its initial point of traveling to its final point. So this is A point, this is B point. So this is known as range of projectile. Range of projectile. Okay, so this is the range of projectile. So this is maximum height, so this is range of projectile. If the projectile is reaching here, the range is less. If the projectile is reaching here, the range is maximum. So the distance covered by the projectile in horizontal, maximum distance covered by the projectile along horizontal direction is its range. Range of projectile, what is range of projectile? Maximum distance covered by the projectile along the horizontal direction, along the horizontal direction, that is range of projectile. So this is horizon now,
ये क्या है, ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, दिस इज रेंज ना। जब ए से स्टार्ट हुआ बी तक आया तो ये क्या रहा, हवा में रहा ना, ए से लेके बी तक कहाँ रहा, हवा में। सो ए से लेके बी तक कोई ना कोई तो टाइम लगा ना, ये टाइम होता है जो इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, क्योंकि तब तक वो हवा में रहता है। टाइम टेकन टू कवर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is time of light. So we are known aware of the term angle of projection क्या होता है, we know what is angle of projection, we know what is the initial velocity of projection, okay, this is also we know what is maximum height, we know what is range of projectile, we know what is the time of light, we know, we will calculate what is the range, we will calculate what is the time, so everything we are going to calculate one by one, okay, like this. So this is this, so अब important points को mention करेंगे. So now I am going to divide this blackboard into two parts. So first part I will do on this way, and second part I will do on that way, on that part. So I am going to break this board into its two parts. Okay. So this is a projectile. Draw again like this, and its initial velocity is in this direction. It is making angle of projection. So this is ux, which is equals to u cos theta, and it is equals to uy, which is u sin theta. Okay, like this. This is our theta. So at this time, suppose the velocity is in this direction, and this is horizontal component of velocity, and this is vertical component of velocity. So vertical component पे gravity कहाँ act करेगी, downward. vertical component को कहाँ खींचने की कोशिश करेगी, नीचे. पर जो horizontal component of velocity है ना, जो ये है, ये वाला, और यहाँ ये है, इस पे ग्रेविटी एक्शन नहीं कर रही है, ये याद रखो, इस पे ग्रेविटी एक्शन नहीं कर रही, यहाँ पे जा रहा है. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, तो वर्टिकल ऐसा होगा, वर्टिकल ऐसा होगा, वर्टिकल को नीचे खींच रही है, तभी तो बेंडिंग हो रही है. हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल को जो हमारी ग्रेविटी है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्शन नहीं कर रही है, ये रिमेंबर करो, सिर्फ वो वर्टिकल कंपोनेंट पे एक्शन कर रही है. तो अगर उस पर काम नहीं कर रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा. सो फिर कौन सा चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज. सो ये पहला पॉइंट है, ग्रेविटी इज एक्टिंग. अगर कोई चीज़ ऊपर जाने की कोशिश करती है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करने की कोशिश करती है. हॉरिजॉन्टल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ग्रेविटी is acting on the vertical component only on the vertical component of velocity. Okay, it is not acting on horizontal component. अगर एक फुटबॉल है, हम उसको किक कर दें, फ्रिक्शन हो ही ना, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता है. ग्रेविटी तो है ना, फ्रिक्शन नहीं है, पर ग्रेविटी उसको नहीं रोक रही है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती होती है जो हमारी ग्रेविटी होती है.
सो ग्रेविटी इज एक्टिंग ओनली ऑन दी वर्टिकल कंपोनेंट, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, जो ऐसे जा रहा है, जो जैसे यू एक्स है, जो यू कॉस थीटा है, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो जिस पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही है, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। सो सारे मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल का जितना भी मोशन है उसके दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। सो कंपोनेंट ऑफ, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो वेलोसिटी का, वो बिल्कुल सेम रहेगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी will remain same throughout the motion of projectile। जितना भी मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का ए से लेके बी तक, सारे में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्शन नहीं कर रही है थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सिर्फ एक्सेलरेशन किस में आ रही है, बदलाव किस में आ रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट में आ रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट वांट्स टू गो अप बट ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है। सो बदलाव भी उसी में आ रहा है, दैट्स वाई बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस। So gravity is acting on the vertical component of velocity, not acting on the horizontal component. So horizontal component, it will remain same throughout the motion of projectile. Okay. So we are saying like this. So first we calculate the time of flight. We will calculate the time of flight. So our first target is to calculate time of flight. Time taken to cover the range of projectile. Time taken to cover the range of projectile, that is time of flight. तो ये कितना टाइम लगा उसको फ्लाइट में, तो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सपोज दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल, दिस इज हॉरिजॉन, सो दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल। ओके, सो व्हाट इज दिस? ए से बी, इट्स अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम टेकन टू कवर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले इसकी डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कवर रेंज इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ भी क्या है? फ्लाइट में है, फ्लाइट में है, फ्लाइट में। जितना भी फ्लाइट को कवर करने में समय लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या है? ये सारा समय क्या हो रहा है? रेंज को कवर करने में लग रहा है, तो दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, सो अगर हम बात करें, हाँ हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया, बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई, नीचे आ गई। इनिशियल पॉइंट क्या है? ग्राउंड। फाइनल पॉइंट क्या है? ग्राउंड। ओके, इनिशियल भी वही है जहां से शुरू हुई थी, वो भी ग्राउंड है, फाइनल भी वही है, ग्राउंड है। समझा रही? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल और फाइनल, तो मान लो आप कहोगे इनिशियल ये है, फाइनल वो है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना, इसको ऐसे सोचो, वी हैव थ्रोन सम ऑब्जेक्ट, ऐसे हमने ऊपर को थ्रो किया और वो नीचे आ गया। ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। इनिशियल पॉइंट भी वो है, फाइनल पॉइंट भी वो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ज़ीरो हो रहा है। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर करो, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाना है, ठीक है। वर्टिकल मोशन में अगर हम बात करें तो हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इनिशियल पॉइंट भी वही है ग्राउंड, और फाइनल पॉइंट भी क्या है? ग्राउंड है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तब डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये होता ए और पहुंच जाता बी पे, तो तब तो डिस्प्लेसमेंट थी, पर वो तो नीचे ही आ गया, इट हैज़ रीच टू ग्राउंड, सो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। सो व्हाट इज़ दी मतलब टाइम
इन वर्टिकल मोशन कंप्लीट टी, इट्स अ टाइम ऑफ लाइट। वर्टिकल मोशन में टाइम क्या है? टाइम ऑफ लाइट है। ओके, सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। ओके, सो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? u है। ओके, सो एक चीज है, ये क्या हो रहा है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन ऐसे, जितना वर्टिकल मोशन ज़्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये नीचे से मुड़ आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा है। जितना ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल मोशन। पहले ये देखो, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिसाइडेड बाय वर्टिकल मोशन। सो हम सारे कंपोनेंट क्या लेने वाले हैं इसमें? वर्टिकल मोशन के लेने वाले हैं। वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, टी कितना हो रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है। सपोज मान लो वर्टिकल मोशन ये हो गया, सपोज ऐसे गया हमारा, तो ये सारा क्या है? क्या है ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है या क्या है? टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्प्लेसमेंट हम जीरो क्या ले रहे हैं? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ग्राउंड है, फाइनल पॉइंट भी ग्राउंड है। और वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। ओके, सो हमने क्या ढूंढना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है वर्टिकल मोशन में? प्लस जी और माइनस जी। एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है माइनस जी। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता, हॉरिजॉन्टल मोशन होता तो कोई एक्सेलरेशन एक्ट करती? नो, जीरो एक्सेलरेशन होनी थी। ठीक है, so this is a concept. Put the values. So now we are coming to this part of the board. तो वो ऐसे ही रहेगा अभी। आई एम नॉट गोइंग टू रॉप दैट। एस की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल मोशन? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ग्राउंड है, फाइनल पॉइंट भी ग्राउंड है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वर्टिकल में देखनी है कोई डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। वर्टिकल में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल में कितनी है? ए बी। तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट अगर कहाँ होती? अगर इनिशियल पॉइंट ए होता और फाइनल पॉइंट बी होता वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल में तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है कोई, क्योंकि जहाँ से पहुँचा वर्टिकल में ए से शुरू हुआ और कहाँ आ गया? बी। सो वर्टिकल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये, और वर्टिकल में एंडिंग पॉइंट भी वही है, नीचे आ गया। सो नो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल पोजिशन। ठीक है, सो यू जीरो। यू क्या है वर्टिकल में? यू साइन थीटा। सो सबसे पहले रिमेंबर करो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय दी वर्टिकल मोशन। जितना वर्टिकल मोशन ज़्यादा होगा उतना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ज़्यादा। वर्टिकल मोशन थोड़ा है, वर्टिकल मोशन मीन्स ऊपर को कम जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या है? लेस। यू साइन थीटा। टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस जी, and what is t? T square. Okay, so this is u sin theta t into t minus half g t square. So this minus term will come this side, half g t square is equals to u sin theta into t. So one t will cut with one t, what will remain? Half g t u sin theta. So we want to find the time of flight. इसको इधर रखो, बाकी all terms will go on that side. 2 is in dividation mode, 2u sin theta upon g. So this is the formula of time of flight. So remember first thing, time of flight is given by vertical motion. तो vertical motion में displacement क्या है? तो displacement तभी होती है अगर वो ऊपर जाके रुक जाती है। वो तो ऊपर जाके रुकी नहीं, वो तो नीचे आ गई।
अगर ऊपर जाके रुकती तो कोई ना कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो होनी थी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है फाइनल, तो वो तो नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। वर्टिकल में वेलोसिटी u sin थीटा, वर्टिकल का टाइम, वर्टिकल को कवर करने में टाइम, पूरा वर्टिकल, तो ऐसा कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिसाइडेड बाय वर्टिकल मोशन। सो दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट पैरामीटर इज डन, टाइम ऑफ फ्लाइट। So second parameter is time of flight is done. So second parameter is to calculate a maximum height. How we will calculate the maximum height? So maximum height किस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है या वर्टिकल में आ रहा है? U theta. So this is maximum height, h max. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि देखो अगर कोई हम स्टोन थ्रो करते हैं, स्टोन की यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, तो तभी तो वो नीचे को रिटर्न करता है। सो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। ओके, ये हो गया। सो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, फिर कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक ही वैल्यू होती है, इट्स कांस्टेंट, ये तो चेंज ही नहीं होती। कितनी होती है, u cos थीटा, u cos थीटा। सो ओनली horizontal velocity x, that is equals to u cos theta. So what we want to know, हमें maximum height ढूंढनी है। So maximum height is also given by vertical motion, ठीक है। v square minus u square is equal to 2as, s हमने लेना है maximum height। ओके, अगर ऊपर को जा रहा है, what is the value of acceleration, minus g, 2 into minus g is equals to what is this v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऊपर जाके, ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी है, जीरो। एक ही वेलोसिटी है जो एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कौन सी है, u cos थीटा, लाइक दिस। सॉरी सॉरी सॉरी, सो हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, जब स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, यहाँ से, और कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट पे, तो v क्या होगी, जीरो। स्टार्ट कितने, वर्टिकल वेलोसिटी से, देखो मैक्सिमम हाइट को कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। अगर वर्टिकल वेलोसिटी ही है जो बॉल को ऊपर लेके जा रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं लेके जा रही, हॉरिजॉन्टल तो ये कवर करवा रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से रेंज कवर हो रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से रेंज कवर हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ऊपर वाला मोशन हो रहा है, और ऊपर वाले मोशन में क्या हो रही है, मैक्सिमम हाइट पता लग रही है कितनी जाएगी। सो शुरू में जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। शुरू की वेलोसिटी कितनी थी ये पता नहीं है, फाइनल में कितनी होगी, क्योंकि अब वर्टिकल ही डिसाइड करेगा सारा कुछ, 2as। सो मैंने ये लिखा है यहाँ पे v तो जीरो है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाती है फिर u cos थीटा, पर वो हमारे मैटर में नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने बॉल को थ्रो किया था, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये थी u sin थीटा। वर्टिकल में हमने इनिशियली कितनी दी थी, शुरू में हमने कितनी दी थी, u sin थीटा, और इधर जाके वर्टिकल कितनी होगी, जीरो। सो फाइनल कितनी होगी है,
सो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो v है वो कितनी होगी, जी। एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है, -g। यार मैक्सिमम हाइट ढूंढ रहे हैं हम। सो व्हाट इज दिस मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से आ रही है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से आ रही है। सो शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, और जब मैक्सिमम हाइट आई तो तब कितनी होगी, शुरू में कितनी थी, u sin थीटा, और जब मैक्सिमम हाइट आई तो फाइनल कितनी होगी, 0। सो 0 स्क्वायर माइनस u sin थीटा स्क्वायर 2 इंटू -g इंटू h max। okay, like this. So what is this, 0 minus u square sin square theta is equals to minus 2g h max. So this minus will cancel with this minus, u square sin square theta upon 2g is equals to maximum height. So this is the expression to calculate the maximum height of projectile. So this is second parameter to how to calculate the maximum height. Okay. So maximum height हमें पता लग गई है, अब ऐसे निकलती है। अब आगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अब रेंज इज गिवन बाय द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। सपोज वी हैव थ्रोन फ्रॉम दिस A to B, so this is known as the range of projectile. Maximum horizontal distance covered by the projectile is known as a range of projectile. Okay, so it is decided by horizontal velocity सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी है हॉरिजॉन्टल, वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है, u cos थीटा। यहाँ भी u cos थीटा है, अगर हमने u से थ्रो किया था, क्योंकि हमने माना है u से थ्रो किया, थीटा एंगल बना रहा है, बट इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा ही रहेगी। अब u cos थीटा वेलोसिटी है, जो स्पीड है, कितने टाइम तक लगी है, कितने टाइम तक लगी है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक लगी है, जितना टाइम फ्लाइट में रहा तभी तक लगती रही। सो टाइम ऑफ फ्लाइट तक कितनी लगती रही, u cos थीटा लगती रही, टाइम ऑफ फ्लाइट तक कितनी लगती रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगती रही, और क्या तय हो गया, एक दूरी तय होगी, और वही दूरी क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सो u cos थीटा एक्ट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम हवा में रहेगा प्रोजेक्टाइल तब तक u cos थीटा लगती रहेगी। सो u cos थीटा एक्ट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर कोई स्पीड किसी समय के लिए लग रही है तो हम वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। So this range is known as s is equals to speed into time is known as distance. So what this distance will become? It will become range of projectile. So what is the velocity that is acting? U cos theta. For what time it is acting? Time of flight. And we have calculated the time of flight. So what is the value of time of flight? 2u sin theta upon g. So this is the, we have calculated time of flight. For this time, u cos theta act. This is range of projectile. So what is the range of projectile? 2u into u square sin theta into cos theta अपॉन जी। 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसको कहते हैं sin 2 थीटा।
सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? यूज केयर sin 2 थीटा अपॉन g. It would be known as range of projectile. Okay, so this is the formula of range of projectile. Okay, they can ask a question, भी रेंज कब मैक्सिमम होगी? रेंज कब मैक्सिमम होगी? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, 1 होती है. तो रेंज तब मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा, मतलब 2 थीटे की वैल्यू क्या होगी? 90. रेंज विल बी मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ 2 थीटा इज 90. ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है. रेंज विल बी मैक्सिमम इफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगर ये 2 थीटा कैसे भी 90 हो जाए तो थीटे की वैल्यू क्या आई? 45 डिग्री. दैट मीन्स अगर हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेंज कवर होगी. क्या कवर होगी? मैक्सिमम रेंज कवर होगी. सो प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन एट 45 डिग्री टू हैव मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. Should be thrown at 45 degree to have maximum range. So range of projectile topic is done. So range of projectile determine होती है horizontal velocity से, time of flight vertical velocity से, maximum height कितनी हो रही है वो भी vertical velocity से, like this. Okay, सो थर्ड पैरामीटर भी हो गया है हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो चौथा पैरामीटर है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये इक्वेशन कौन सी फॉलो करता है? सो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, this is a fourth concept. Okay, you know that we have thrown a parabola like this. Okay, sorry, we have to make some like this. Suppose like this, and it's having velocity u initial, thrown with angle of projection theta. It's having some component along this. Ux is equals to u cos theta, and along vertical it's uy is equals to u sin theta. Vertical velocity is initial u sin theta, initial is u cos theta. Okay, like this. So like this. Okay, so this is an xy axis, this is x axis, and this is y axis. Okay, suppose here x is 0, y is 0. Here x is 2, y is 1. Suppose 2 1, and here x is suppose 3 and y is also 3. So at every point of motion of projectile, x and y coordinates are changing. X and y coordinates are changing. Okay, so at every time, at every instant, what are changing? X and y coordinates are changing. They are changing, ये तो पता है. Okay, this we know. Suppose हम किसी भी, suppose हम ये मानते हैं this is our motion of a projectile.
एट एनी टाइम टी, हम किसी भी एक टाइम पे मानते हैं एट एनी टाइम, सपोज कोई टाइम टी हो गया, यहाँ टाइम 0 था, टाइम टी हो गया, ओके। तो ये सपोज इसने इसमें दूरी कितनी तय की है, सपोज x, और वर्टिकल में सपोज कितनी दूरी गई है y। तो नए कोऑर्डिनेट बना रही है x और y। सपोज एट एनी टाइम t हम ये मानते हैं जो प्रोजेक्टाइल ने x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारा क्या है, ये है, और जो y एक्सिस में ट्रैवल किया है वो ये है, ओके, लाइक दिस। We will calculate the distance traveled in x-axis also. We will calculate the distance traveled in y-axis also at any time t. So at any time t, अगर हम any time t मानते हैं तो distance covered in horizontal direction वो कितना है, x है। Distance covered in horizontal direction, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन बता सकता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम कौन सा डिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में कवर हुआ है। हॉरिजॉन्टल में एक ही स्पीड रहती है, कौन सी, u cos थीटा। और कितने समय तक रही वो u cos थीटा, t समय तक, क्योंकि हम बात किस समय कर रहे हैं, t की। सो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x। सो डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा इनटू टाइम। भाई u cos थीटा स्पीड चलती रही हॉरिजॉन्टल में, कितना समय तक चलती रही, t तक। तो हमें दूरी क्या मिल गई, हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल की दूरी क्या है, x। अब लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई की फॉर्म में होती है, हमें एक्स वाई में ही जाना है। सो डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकल में देखो कौन सी वेलोसिटी हो रही है, u साइन थीटा, उसकी वजह से क्या कवर होने वाला है, हमारा डिस्टेंस कवर होने वाला है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो वर्टिकल वाला केस ले लेते हैं। वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, y। शुरू वाली वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा से छोड़ा था हमने। कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, -g। तो एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है, g। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितने समय तक चलाया हमने वर्टिकल में, t समय तक चलाया, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट t। सो व्हाट इज दिस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, y। कितने समय में, t समय में। u कितना था वर्टिकल में, u साइन थीटा, क्योंकि u साइन थीटा ही वर्टिकल में डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगा, इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितनी है, -g, और समय कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एक्स एक्सेस की इक्वेशन आ गई है, ये वाई एक्सेस की आ गई है, ओके। सो ऐसा करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमारे टाइम की वैल्यू ढूंढ दो, टाइम की, और वो 2 में पुट कर दो, ओके, बिकॉज इट्स u t इज ऑल्सो हियर, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें से टाइम की वैल्यू ढूंढो, x अपॉन u cos थीटा। अब इसको 3 को पुट कर दो 2 में, क्योंकि t की वैल्यू, फिर हमारी x और y की रिलेशन पता लग जाएगी, क्योंकि x और y की रिलेशन से बता पाएंगे हमारी इक्वेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल कौन सी इक्वेशन में काम कर रहा है। इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, भाई ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, ये मोशन कैसा होगा, वो इक्वेशन से ही पता लगेगा। तो हमारा टारगेट है पता करने का, भाई मोशन कैसा है। सो पुट दिस 3 इन 2, सो y इज इक्वल्स टू u into sin theta, okay, into t. What is the value of t, x upon u cos theta. Next is minus, next is half, next is g, and next is t square. And what is the value of t, x upon u cos theta, okay, like this we are doing like this. So u will cancel with u, so what will remain, x
साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस हाफ जी what will remain u square cos square theta and what here will be x square. Okay, like this. So you know theta जो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो ये तो बदलेगा नहीं, एक बार जैसे फेंक दिया u भी कांस्टेंट है, एक बार जैसे ड्रॉप कर दिया वो भी कांस्टेंट रहने वाली है, g हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी पता है। सो ये टर्म क्या बन जाएगी, टेन थीटा क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसको a मान लो, कोई a कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू a ले लो, तो ये क्या है हाफ g भी कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, तो कॉस क्या थीटा भी कांस्टेंट आएगा, पूरे आगे माइनस लगा लो तब भी ये क्या कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, उसको b ले लो, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको b ले लिया, हम इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल्स टू ax, अब तो प्लस लिख लो क्योंकि माइनस हमने इसमें ले लिया, तो b x स्क्वायर, तो हमारी ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बन गई, ये इक्वेशन है, पर हमें पता करना है भाई ये इक्वेशन किसकी बनी है, स्ट्रेट लाइन की बनी है, सर्कल की बनी है, किसकी बनी है, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो बता रहा हूँ अभी पता लग जाएगा, अगर y की पावर 1 है और x की पावर 2 से शुरू हो रही है, तो इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैथ का टर्म है, रिलेट करो, ये वैसी नहीं बन रही, y की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, फिर x की 1 आ रही है, तो कांस्टेंट क्या है 0 लगा दो, प्लस c 0 है, तो ये किसकी इक्वेशन बन गई है पैराबोला। सो जो पाथ होता है ना प्रोजेक्टाइल का, इट्स अ पैराबोला, सो पैराबोला ऐसा होता है लाइक दिस, ऐसे, सो दिस इज अ पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल follows the path of a, so projectile equation is similar to that of parabola. पैराबोला, सो ये कौन सा पाथ है, पैराबोला है। सो शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल ये होता है, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर, सॉरी दिस इज प्रोजेक्टाइल, दिस इज पाथ, दिस इज कोई पाथ तो फॉलो कर रहे हैं, पाथ है, पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी, पाथ फॉलोड बाय पैराबोला इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी किस शेप की है, पैराबोला शेप की है, किस शेप की है, शेप। सो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता, इज शेप ऑफ पैराबोला। कैसे पता लगा, इक्वेशन से पता लगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से पता लगा। ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता, ऐसे गया या कैसे गया, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज शेप ऑफ पैराबोला। सो दिस इज डन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कवर पता किया, मैक्सिमम हाइट पता की, ओके। सो मैक्सिमम हाइट के बाद हमने क्या पता की, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पता की, और चौथी चीज़ आज पता किया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सो दिस इज द कंसेप्ट। सो लास्ट कंसेप्ट रह गया एक, तो डिस्कस कर ही लेते हैं, लेक्चर इज टू लार्ज, बड़ा हो गया है, डोंट वरी, टाइम इज टू मच फॉर यू एज इट इज अ लॉकडाउन फॉर यू ओनली, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो दिस इज लास्ट पैरामीटर जो हम ढूंढने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो हम वेलोसिटी ढूंढेंगे एट एनी टाइम t,
velocity of projectile at any time t, एट एनी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी, कोई भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होने वाली है। जैसे शुरू में तो पता है u है, शुरू वाली वेलोसिटी तो पता है, इट्स u। ओके, सपोज एट टाइम t यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, इंस्टेनियस वेलोसिटी पता करनी है हमें। वी वांट टू फाइंड द इंस्टेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट इज द वे ऑफ फाइंडिंग दैट इंस्टेनियस वेलोसिटी? Okay, so second concept is, so this is u, it is having two component, one is ux and one is uy. Okay, what is ux? U cos theta. And what is uy? U sin theta. So it is projected at angle theta. Okay, like this. Suppose at any time t it has reached this location, and this location यहाँ पे इसकी एक velocity u तो अब रहेगी नहीं, क्या बन गया, फाइनल velocity v बन गई। सो इस v का एक component it would be along horizontal और एक component along the vertical। vy is the vertical component and vx is the horizontal component। Suppose this velocity is making angle alpha with the horizontal component। अगर हमें मान लो डायरेक्शन पता करनी तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल is thrown with u at angle of theta with the horizon. Okay, so at any time t its velocity is v। suppose तो v ही हमें ढूंढनी है, our target is to find this v। okay, like this। so ये अभी यहाँ कर लो, ux is u cos theta and uy is u sin theta। so we will have two components, v के भी दो components हो, one is vx, that vx, one component is vx and one component is vy। so what is the vx component? हॉरिजॉन्टल में क्या नहीं चेंज होती है, वेलोसिटी नहीं चेंज होती है हॉरिजॉन्टल में। अगर यहाँ u cos थीटा थी तो यहाँ भी क्या रहेगी, u cos थीटा, बिकॉज नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, तो वो तो सेम ही रहेगी। व्हाट इज vy कितनी हो जाती है, तो v ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा उस पर एफर्ट करना पड़ेगा। हमने रिलीज इनिशियल पे कितनी की थी, इनिशियल क्या थी, u sin थीटा, जो हमारी इनिशियल थी वर्टिकल की वो कितनी थी, इतनी, ये इनिशियल। और टाइम t होने के बाद पता करनी है वो क्या होगी, vy पता करनी है, कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, g। ओके, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनिशियल में वर्टिकल कितनी थी, u sin थीटा, क्योंकि वी आर अभी हमें वर्टिकल पता करनी कितनी है, हॉरिजॉन्टल तो पता लगा, तो ये क्या आ गई, दिस इज vy की स्क्वायर। तो 2 माइनस जी, और हाइट कितनी कवर हुई है, हाइट कितनी कवर लेंगे हम, नहीं ये इक्वेशन नहीं लग सकती क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते इस इक्वेशन। सो हम ये इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 8। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, फाइनल कितनी होगी, vy। अभी जो ये है कितनी एक्सेलरेशन है g, और समय कितने के बाद बात कर रहे हैं, t के बाद, एट टाइम t की बात कर रहे हैं, तो दिस इज vy, u sin थीटा माइनस g। so this is a vx and this is vy, sorry 2, you know।
सो ये v वेलोसिटी है, एक इसका कंपोनेंट vx, हमने vx भी ढूंढ लिया, हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल तो बदलेगी नहीं, और एक वर्टिकल है, वर्टिकल हमने इस इक्वेशन से ढूंढा है v इज इक्वल टू, शुरू में कितनी थी, बाद में कितनी होगी, वर्टिकल में शुरू में कितनी थी, बाद में वर्टिकल में कितनी होगी, कितनी एक्सेलरेशन लगी और कितने समय के लिए लगी है। सो वी हैव फाइंड आउट, हमारे पास क्या है, ये v है एट एनी टाइम t, एक कंपोनेंट इसका vx आया है और एक कंपोनेंट इसका vy आया है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो मैग्नीट्यूड बहुत आसान होता है, पहले कंपोनेंट की स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट की स्क्वायर। फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट कंपोनेंट vx, सो vx इज द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड वाला कंपोनेंट इज vy, vy की कंपोनेंट। सो vx की वैल्यू पुट कर दो, क्या है u cos थीटा, u cos थीटा स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू को पुट कर दो u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर। सो अब उसको ओपन करो, फिर पता लगेगा वेलोसिटी क्या आने वाली है एट एनी टाइम t, सपोज इट्स v, मैग्नीट्यूड मान लो v आ गया, तो उसको अंडर रूट में रखो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2u साइन थीटा इंटू जी टी। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ढूंढते हैं उसको, करते हैं कैलकुलेट। वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले वैसे ही लिख लो जो आया है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt u sin थीटा, ओके लाइक दिस। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या, u स्क्वायर कॉमन निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर ही रह गया फिर, प्लस क्या रह गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी टी इंटू यू इंटू साइन थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, ओके। So this is the velocity at any time t, like this. तो ये वर्टिकल वेलोसिटी आई है एट एनी टाइम t, और ये जैसे जैसे मतलब ऊपर जाते हैं ये कम होती जाती है, कम होती जाती है, ओके। सो अगर हमें डायरेक्शन ढूंढनी है, इस v की डायरेक्शन, v कितना एंगल बना रही है अल्फा, सो हमें क्या ढूंढना है डायरेक्शन, tan अल्फा ढूंढना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा वैल्यू इज vy अपॉन vx, vy अपॉन vx। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है vx, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है u sin थीटा माइनस जी। सो हमें अल्फा पता है, अल्फा कैसे पता करते हैं, tan इनवर्स कर दो ये सारी वैल्यू का, u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। सो ऐसे पता लग जाएगा अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना बना। तो ये वेलोसिटी आएगी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी ढूंढ सकते हो भी प्रोजेक्टाइल की कितनी है। सो इंस्टेनियस वेलोसिटी, दिस इज लास्ट, एंड विद दिस प्रोजेक्टाइल इज डन, आई विल मीन्स send the numericals related to this. I will means give a short video related to numericals of this topic and a one example related to that concept. So this is projectile is over today. So hope you enjoyed today's lecture. Thank you. Have a nice day. Make properly notes. I will send some numericals. You have to try them. And after that I will send the video, small video of those solutions of those numericals. If they are not means got into your mind in the first time, I will send the video. So I'm ending the lecture here. Thank you. Have a nice day.